Warm greetings to all students of Kids Planet School. Dear students, we are all well aware of the ongoing coronavirus pandemic and the series of lockdown declared by the government to keep us well protected. The lockdown has resulted in the shutdown of all education institutions and hence the management of Kids Planet School has decided to bring about a series of online lectures for various subjects on its YouTube channel to help with the academic progress of its students. I, Sheikh Tawfiq, will be a virtual teacher for political science subject. And let us now begin with our first lesson, working of the Constitution. The textbooks of political science till now have helped us to take an overview of local government. Local government are the local government bodies which are seen in rural areas. The values and the philosophy of Indian Constitution as also the governing structures created by the Constitution and India's place in international relations. A constitution is a written document which consists of different rules and regulations to govern one's country. Our constitution includes 25 parts containing 448 articles and 12 schedules. The Indian constitution is the longest written constitution. The objectives of Indian constitution is to establish a socialist, secular, democratic and republic state. A secular state is one which is not connected by any religious or spiritual matters. And a republic state is a state where the candidate is a republican, not a monarchy. जैसे कि चाइना एंड और स्टेट्स में होता है, जो भी नेता चुने जाते हैं वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की यानी राजघराना। रिपब्लिक स्टेट उससे अलग होता है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो एक नॉर्मल पीपल में से होते हैं। The next is important provisions are made in the constitution so that people can easily secure justice and their freedom is safeguarded. कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कि लोगों को फ्रीडम वाली ज़िंदगी दिया जाए और उनके जो भी राइट्स एंड रेगुलेशन है वो सारे वो फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। The constitution is a key element in forming a progressive society based on social justice and equality. Indian constitution came into force on 26 January 1950, but it was prepared way earlier on 26 November 1949. For a constitution is a constitution is something like a game of football. Imagine a game of football without any rules and regulations. आप सोचिए कि आप एक फुटबॉल का गेम खेल रहे हो बट जिसमें कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है, तो क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कौन सी टीम आउट हो रही है, कौन सी टीम जीत रही है या कौन चीटिंग कर रहा है, या अगर कोई चीटिंग करता है तो उस पर क्या होना चाहिए, है ना? सब मेस्ड अप हो जाएगा। तो जैसे गेम को सही से प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, उसमें मज़ा आने के लिए, स्पोर्ट्समैनशिप लाने के लिए उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही एक देश को, एक स्टेट को सही से गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ों के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए और लोगों की क्या क्या राइट्स है और उनको। In this chapter, we will take a brief overview of the wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in its political process, and steps that have been taken to establish social justice and equality. This review will primarily focus on three areas: democracy, social justice, and judicial system. Now, what is democracy? डेमोक्रेसी जिसे हिंदी में कहा जाता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जहां लोग अपना नेता खुद चुन सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। नाउ व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ हैविंग अ डेमोक्रेसी? फर्स्ट, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। सेकेंड, राइट टू वोट। थर्ड, decentralization of democracy यानी decentralization of power. Fourth one, right to information. The second one was social justice and equality. Social justice मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ सारे लोग एक समान, किसी व्यक्ति का धर्म या किसी को छोटा बड़ा ऐसा बांटा नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। सबको इक्वल नज़रिए से दिखना, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी।
When all injustice are removed and all the people are treated equally, equal opportunities are given to all the people, then it is said that social justice and equality has been achieved. फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें किया है ताकि इक्वालिटी को कंट्रोल में ला सके या उसे ख़त्म किया जा सके। उनमें से कुछ है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन जैसे कि वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स रिजर्वेशन मीन्स टू रिजर्व सम पोस्ट और सीट फॉर स्पेशलाइज्ड पर्सन्स। सो हु आर दिस स्पेशलाइज्ड पर्सन? They are belonging to the people of scheduled caste and scheduled tribes or minorities who have not got the required resources for their development in the society. ये सोशल कास्ट और रिजर्वेशन उन लोगों के लिए होता है जो पिछड़े या दलित जमात के होते हैं, जिन्हें रिसोर्सेज यानी कि पैसे, फूड, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती ताकि वो लोग सोसाइटी में आगे बढ़े। तो उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन स्टार्ट किया है रिजर्वेशन का, ताकि हम उनको थोड़ा बढ़ावा दे सकें। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे एरिया में नॉर्मली स्कूल्स एंड सारे फैसिलिटीज़ हम लोग को मिल जाती है, बट ऐसे रूरल एरियाज़ है या ऐसे एरिया है जहाँ पे स्कूल ही नहीं है, या कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे स्कूल है बट उनके पास पैसे ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो इनको रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो कॉलेजेस में, जॉब्स की जगह पे या यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी इन लोगों के लिए सीट रिजर्व की जाती है ताकि इन्हें थोड़ा एक पुश मिले। Second one was, after policy of reservation of seat, the second the government has been helped in the Scheduled Caste and Tribes Act. Government has started an act in which जो ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जब उन पर अत्याचार होता है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है ताकि जो भी लोग वो ऐसे क्लास को डिप्राइव करते हैं तो उन्हें सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब ये सारी चीज़ें बहुत दिखी जाती थी, उच्च जात और नीच जात, तो ऐसे लोगों को मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तो सोशल कास्ट और सोशल ट्राइब्स के जो भी पीपल हैं उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़। सेम थिंग, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेम वैसे ही माइनॉरिटीज़ के लिए। अब माइनॉरिटीज़ मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र द पॉपुलेशन ऑफ जैन एंड पारसी इज़ वेरी लो, सो दे आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी इन महाराष्ट्र। मतलब एक पूरे स्टेट में से जो एक पर्टिकुलर कास्ट की जनसंख्या बहुत कम रहेगी तो उसको माइनॉरिटी बोलेंगे। तो वो इंसान भी वहाँ पे सेफ नहीं फील करेगा क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो दूसरे कास्ट या कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उसे सेफ फील करवाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोविजंस और एक्ट्स बना रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिया है माइनॉरिटीज़ को भी और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को भी। द नेक्स्ट इज़ लॉज फॉर वुमेन। जैसे वुमेंस को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था पुराने टाइम में, बट हम चाहते हैं कि वुमेंस को भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसलिए उन्हें भी बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं गवर्नमेंट के नए नए एक्ट से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं जो हमें बता रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि वुमेन्स भी मतलब सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। वुमेन्स को सिर्फ बढ़ावा नहीं देना है, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी उनके लिए स्पेस ओपन करना है, क्योंकि जब कोई ऐसी नेता होगी जो खुद वुमेन है तो वो उनका दुख और तकलीफ सही तरीके से समझ पाएगी और उनकी हेल्प कर पाएगी। तो ये तो था सोशल जस्टिस के बारे में। द नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या? वो सिस्टम जो हर इंडियन को न्याय दिला सके। जुडिशरी इज़ अ सिस्टम, अ जुडिशियल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ कोर्ट्स एंड लॉज which is capable to bring justice to each and every Indian. The system of law courts that administer justice is called as judiciary. What are some important power of the judiciary? अब इतना बड़ा सिस्टम है तो उसके पास कुछ पावर तो होगी ना। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, बट पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ सकें। अब यहाँ पे रोल आता है जुडिशरी का। जुडिशरी का काम ये है कि जब पार्लियामेंट कोई चेंजेस लेके आती है तो जुडिशरी को इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि उस चेंजेस से, उस चेंज की वजह से या उस नए लॉ के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, इन सारी चीज़ों पे खतरा नहीं आना चाहिए, ये देखने का काम जुडिशरी का है। So let us study in brief the democracy. First one is political maturity.
Democracy does not merely imply a representative. The essence of the representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice. Essence means significant feature, and integral means to combine, means to bring together. Once this is done, democracy becomes an integral part of the political system in society. People have direct representation in the parliament, state legislature, and local government. And also, people have direct representation in the parliament, state legislature, and local government. Free and fair elections are conducted at regular intervals in India. It is an important indicator of India's successful democracy. Citizens cast their vote weighing the public issue and policies related to it. The increasing participation of people in the political arenas shows the success of Indian democracy. The Indian Constitution has made the provision of right to vote for adults. In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. All such provisions were cancelled after independence, and the Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women above the age of 21 Later, years. it increased the scope of democracy by including the youth of the country, thus making India the largest democracy in the world. The change which came in with the largest number of voters is quantitative as well as qualitative. It means the change was not only quantitative, मतलब सिर्फ संख्या में ही वोटर्स नहीं बढ़े हैं, बट उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आया है। पहले की जो वोटिंग होती थी, मतलब जब एज की लिमिट 21 ईयर्स थी, तब ऐसा होता था कि सिर्फ अडल्ट लोगों को वोट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो देश को सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता था कि अडल्ट क्या चाहते हैं, कि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, बट यूथ्स को तो अपना मौका रखने का, अपना बात रखने का मौका नहीं मिलता था। तो इससे प्रॉब्लम ये होता था कि यूथ जो अपना फ्यूचर है अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाते थे। बट क्योंकि जब वोटिंग की एज घटा दी गई, तब ऐसा हुआ कि यूथ अपने खुद के फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। उनको पता है कि आगे उनको क्या चाहिए, तो वो लोग गवर्नमेंट या पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाएंगे जो उन्हें आगे जाके फ़ायदा दे सके। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो चेंजेस हुए हैं वोटिंग की एज को कम करने से, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं थे, वो क्वालिटेटिव भी थे। यानी सिर्फ संख्या में वो लोग नहीं बढ़े, बल्कि क्वालिटी भी में चेंज आई। The political parties emerged with active support of young new voters, representing different expectations of the people and also leading to competition in the political sphere. After that, it comes to decentralization of power, means transfer of decision making power and assignment of accountability and responsibility for results. In simple words, decentralization means कि पावर को बांट देना है। ठीक है, जो पावर पूरी की पूरी जो पावर है वो एक किसी भी एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग बांट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं बांटने के लिए। दैट आर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर, स्टेट and local self-governing bodies. It is called decentralization of power. The provision for decentralization is embedded in the directive principles of state policy. It helps in curbing the misuse of power and allows common people's participation. The guidelines about empowering the local government is that बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का स्कीम इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी एक इंसान अपने पावर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, वरना पूरा का पावर अगर उसके हाथ में आ जाएगा तो वो सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। तो वो रिस्क हम लोग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया था, वो था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। और तीनों में मतलब तीनों ही एक दूसरे के काम को ध्यान रख सकते हैं। The 73rd and 74th amendments to the Constitution have given constitutional status to the local self-governing bodies and increased their power. Right to information. The next one is right to information. Till now we have studied the three basic things of democracy, that is political maturity, right to vote and decentralization of power.
The fourth one is right to information. It is important to empower citizens in democracy. डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के हाथ में पावर होना बहुत ज़रूरी है, वरना डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा अगर लोग के पास ही पावर ना हो तो. Citizens should get more opportunities to interact with government. Right to information helps in promoting harmony between government and the people. It helped to reduce secrecy, which surrounded the functioning of government. Thus, its working has been more transparent. राइट टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हम लोग गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ के बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट को उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा. इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट और नॉर्मल सिटीजन्स के बीच का जो गैप था वो धीरे धीरे कम हो गया है. तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ का डर रहेगा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, उसका जवाब हमें कहीं ना कहीं देना पड़ेगा. तो वो लोग गलत चीज़ कम कर देंगे या फिर शायद नहीं भी करें. तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था. आफ्टर द ईयर 2000, द सिटीजन ऑफ इंडिया have got right to information, right to education and right to food security. So now we have wrapped up with the democracy part. Let us move to the second part of the chapter, that is social justice and equality. What are the objectives of constitution? Basic objectives है क्या constitution चाहता क्या है? A new progressive society based on values of social justice and equality was the objective set by the constitution. Constitution का मेन ये मतलब था कि ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे सबको जस्टिस मिले और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. तो इसलिए सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल शुड स्ट्राइव टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव्स. टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस मीन्स टू रिमूव कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस, टू इंसिस्ट ऑन इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. सोशल जस्टिस लाने का मेन मतलब क्या होता है कि जितनी भी इनजस्टिस है या जो भी चीज़ें गलत है सोसाइटी में उसको निकाल के फेंकना, सबको इक्वली ट्रीट करना. हर एक इंसान को वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए या उसको उस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो भी सोसाइटी में मैटर करता है और वो इक्वल है. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, रेस, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव, इन सारी चीज़ों को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस. इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल द इंडिविजुअल्स टू अचीव डेवलपमेंट. हर एक इंसान को जो भी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है सबको इक्वली मिलना चाहिए, उसमें कोई भेद. ऑल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी. Efforts are made at all levels of society to establish justice and equality. It is important to include all sections of the society into the mainstream for democracy to be all inclusive. डेमोक्रेसी को सब तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी है कि सोसाइटी का हर एक हिस्सा उसमें मौजूद रहे. सो हाउ डू वी रिमूव द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. जैसे कि मैं कब से बोल रहा हूँ कि सोसाइटी से इनइक्वालिटी निकालना है, जो भी इनजस्टिस है या जो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को अप्रोच करती है या इस चीज़ को बढ़ावा देती है वो सारी चीज़ें निकालना है. तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं अपने हैंड से, या गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए. तो यहाँ पर हम उन पर बात करेंगे. तो बेसिकली ऐसी 5 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने किया है, जिसको मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने किया है बट ये 5 मेजर चीज़ें हैं, जिनमें से पहला है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने इस पर चर्चा करी थी कि रिजर्वेशन मतलब क्या होता है. लेट अस गो इनटू मोर डिटेल. रिजर्वेशन ऑफ सीट इज फॉर दोज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिनाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Some seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in educational institution and public sector undertaking. Seats are reserved for other backward classes as well. ऐसे बहुत सारे सोशल ट्राइब्स और सोशल कास्ट को बिलोंग करते हुए लोग हैं और या फिर माइनॉरिटीज़ के ऐसे लोग हैं जिन्हें एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे के बराबर से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, जिनकी वजह से उनका जो सही ग्रोथ है, जो सही डेवलपमेंट होना चाहिए था, या सोसाइटी में उनको जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मिलनी चाहिए तो वो उन्हें नहीं मिली है. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए सीट रिजर्व कर रही है ताकि वो सीट उनको आराम से मिल सके. जितना लड़ाई या जितनी संघर्ष हमें करनी पड़ेगी उस सीट के लिए, वो लोग को इतनी नहीं करनी पड़ेगी, उससे कम करनी पड़ेगी. तो जब उनको वो सीट आराम से मिल जाएगी, जब उनको वो मौका मिलेगा, तो हो सकता है वो भी उतने डेवलप हो जाए जो हमारे, जैसे हमारे नॉर्मल लोग जितना डेवलप हो रहे हैं एजुकेशन फील्ड में या अलग अलग फील्ड में, तो वो लोग भी अपना नाम कमा सके अगर उनको वो पुश मिलेगा. तो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. द नेक्स्ट वन इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट. Means, in short, Prevention of Atrocities Act. Prevention of Atrocities Act was passed to establish a society based on social justice and equality.
दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी injustice done to scheduled caste and scheduled tribes. बेसिकली ये एक्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के बचाव के लिए बनाया गया है, ताकि सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं वो इनके ऊपर अत्याचार ना कर पाए. Anyone found guilty of committing any act is liable for punishment. और कोई भी इंसान अगर ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हुए पाया गया, सोशल कास्ट या सोशल ट्राइब के या दलित जमात के लोगों को परेशान करते हुए पाया, मतलब एक्शन लिया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी. इसके लिए एक्ट बना था. The third one is provision for minorities. Same as steps were taken to preserve the scheduled caste and scheduled tribes, वैसे ही कुछ कड़े कदम लिए गए थे minorities के बचाव के लिए भी. The government adopted various policies for the minorities in education and employment. The Constitution has prohibited any form of discrimination on the basis of caste, race, religion, language, and region. For the protection of the rights of minorities, the Constitution has adopted various measures like equality, freedom, right against exploitation, culture, as well as educational rights. गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रही है कि माइनॉरिटीज़ को मतलब अपना फील किया जाए. जैसे कि मैंने बताया था, माइनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो लोग कहीं और से माइग्रेट हुए आएंगे. जैसे कि जैन या पारसी का मैंने एग्जांपल दिया था. हो सकता है कि वो लोग महाराष्ट्र में ऐसे एरिया में रह रहे जहाँ पे उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या उनको अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की या अपने हिसाब से रहने की फ्रीडम ना हो. तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था माइनॉरिटीज़ को हेल्प करने के लिए. सेम एज द दलित एंड अदर कास्ट पर रिलेटेड वर कंसिडर्ड. जैसे कि दलित जमात को और बाकी के छोटे जात वाले लोगों को ख़राब माना जाता था या उन्हें राइट्स नहीं दी जाती थी. तो एंशिएंट इंडिया में सेम चीज़ वुमेंस के साथ भी होती थी. वुमेंस को अपना पावर बताने के लिए, अपनी प्लेस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग गया. बहुत से ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर वुमेंस को राइट टू वोट भी नहीं था, अभी अभी जाके मिला है कुछ साल पहले ही. तो इसलिए वुमेंस को भी मतलब पावर में लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए थे. वो क्या है हम देखते हैं. Several policies have been adopted in the. So let us talk about the laws for women. Women have also suffered some of the inequalities in the state of India. Several policies have been adopted in the post-independence period for empowering women. Post-independence period, इंडिपेंडेंस के पहले वुमेन्स की हालत भी सेम वैसी ही थी जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की. उनको ऊपर आने में बहुत समय लग गया. तो बहुत सारी बेसिक पॉलिसीज़ बनाई गई है उनके हेल्प के लिए. उनमें से कुछ है राइट टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड. यानी जो विरासत मिलती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फादर के डेथ के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो पहले वो प्रॉपर्टी सिर्फ लड़कों में बांटी जाती थी, लड़कियों में नहीं. तो ये एक नया रूल लागू हुआ था कि वुमेंस को भी मतलब बराबर का हक रहेगा फादर के प्रॉपर्टी में या हस्बैंड की प्रॉपर्टी में. नेक्स्ट वॉज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. वुमेंस को ज़्यादातर एक बोझ माना जाता था पहले, और वो उसका मेन रीज़न ये था कि उनके शादी के लिए जो भी उनके फादर होते थे उनको एक दावरी वॉज अ काइंड ऑफ रैंसम विच हैज़ टू बी पेड. उनको वो पैसा देना पड़ता है सर्टेन अमाउंट, और वो अमाउंट इतना ज़्यादा होता था कि लोग वो जल्दी पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से शादी नहीं होती थी. तो एक बोझ या एक कर्जा टाइप होता था. तो इसके लिए लोग लड़कियों को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते थे. लड़का होगा तो ठीक है कि लड़के में पैसा आएगा, और लोगों का ऐसा था कि लड़की होगी तो पैसा जाएगा इस चीज़ के लिए. तो गवर्नमेंट ने वो चीज़ को बंद करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगाया, जिससे डाउरी के ऊपर रोक लगाई गई. अब डाउरी देना और लेना भी दोनों ही एक क्राइम है. एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट. अगर औरत को मतलब ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे या घर पे या कहीं पे भी उसे अब्यूज़ किया जाता है, तो वो जाके कंप्लेन कर सकती है. लास्ट वन इज़ डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट. अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने शादी किया है, सो अभी वो उस चीज़ को ओन करते हैं या उस औरत को ओन करते हैं, उस पर रूल कर सकते हैं, वो लोग जो भी करेंगे वो सही होगा. बट ऐसा नहीं है. डोमेस्टिक में भी जो वायलेंस होता है, या अपने घर वाले भी अगर हमें परेशान कर रहे हैं, वुमेंस को लेके अगर घर वाले भी परेशान कर रहे हैं तो वो भी गलत है, उसके खिलाफ भी वो जाके कंप्लेन कर सकती है. तो ये सारे बेसिक प्रोविजंस थे जो औरत को एक पावर के रूप में मिला था. सो अदर देन दिस पावर्स, ये सारे पावर्स या ये सारे नए नए एक्ट्स एंड लॉज बनने के बावजूद भी कंडीशंस इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई जितना हमने सोचा था वुमेंस के लिए.
मुद्दा ये था क्योंकि जो गवर्न करने वाले लोग हैं या वुमेन जो कंप्लेन करेगी वो कहाँ करेगी, पुलिस स्टेशन जो कि मेल स्टाफ से भरा होगा, या लोकल एमएलए नेता लोग जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, वो सब मेल कॉन्स्टिट्यूटेड एरिया था, मतलब ये सब वो एरिया था जहाँ पे मेल्स का डोमिनेंस ज़्यादा था। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो, वुमेन्स जो अपनी कंप्लेन करे या जो अपनी बात रखे, वो भी एक वुमेन हो सुनने वाली, ताकि वो उसको अच्छे से समझ पाए, एजुकेशन से लेके पॉलिटिक्स तक, ताकि वो लोग अपने राइट्स को समझ पाए और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ कैसे स्टेप लेना है, ये सारी चीज़ें लेना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन देना चालू हुआ। द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट reserved 33% seats for women in local self-governing bodies। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या हुआ, उसमें जो रिजर्वेशन ऑफ सीट थी उसमें 33% सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई लोकल गवर्निंग बॉडीज के लिए। बट कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने आगे और आगे जाके इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, जैसे कि महाराष्ट्र, उसने बोला कि 33 नहीं 50% सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, जिससे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में और बाकी सारे एरियाज में ज़्यादा हो। फॉर मिटिगेटिंग इनजस्टिस मेटेड आउट टू वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। एक अलग से कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसका काम था कि वुमेन पे हुए हुए अत्याचार के ऊपर ध्यान देना, उसको रोकना। सिमिलरली कमीशंस वर सेटअप एट स्टेट लेवल ऑल्सो। नेशन के साथ साथ स्टेट लेवल पे भी ये कमीशन बनाया गया ताकि हम लोग और करीब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। द डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट अंडरलाइंड द नीड टू प्रोटेक्ट द प्रेस्टीज एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन। द डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो ये था कि घर में भी अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो लोग को सुन के नहीं लेना है, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी। जैसे कि हमने बहुत सारे अभी मॉडर्न मूवीज़ में देखा रहेगा, बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज़ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो वो लोग कैसे उसका डट के सामना करते हैं और उसको सुन के नहीं लेते, उस चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं। इट रिजेक्टेड एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेंस एंड अथॉरिटेरियनिज्म। कोई भी टाइप का डोमिनेंस, मेल मतलब डोमिनेंट बिहेव नहीं कर सकता। यहाँ पे उसको समझ के रहना पड़ेगा कि मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल है, दोनों के पावर्स, दोनों के राइट्स सारे ही इक्वल है। Inhuman practices were banned by law and traditional dominance was refuted, which gave momentum to the women liberation movement। अब inhuman practices मतलब वो जो इंसान, मतलब इंसान के बहुत पार है, कि उसको हम लोग ह्यूमन नहीं बोल सकते, जैसे कि सती, मेल के मरने के बाद या सॉरी हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को जिंदा जलना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट ह्यूमन, मतलब इसमें इंसानियत जैसा कुछ नहीं है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस बैन होना बहुत ज़रूरी हो गए थे, तो ये सारे प्रैक्टिसेस ख़त्म कर दिए गए हमारे समाज से और ट्रेडिशन से भी, जो कि एक बड़ा स्टेप था वुमेन को लिबरल महसूस कराने में। लेट अस लुक एट दिस टेबल विच शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। लोकसभा में वुमेन्स का सीट्स कितना ज़्यादा है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वुमेन कितने हैं। सो इन 1951 टू 1952 हमारे पास सिर्फ 22 वुमेन एमपीज थे, ठीक है, तो जो टोटल परसेंटेज था वो था 4.50। उसमें द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड ईयर बाय ईयर, जैसे कि हमको ये टेबल में देख के मालूम पड़ रहा है कि पहले जो संख्या थी वुमेन्स की वो बहुत ही कम थी, ठीक है, 4%, 4.50%। एज द टाइम वेंट बाय इट इंक्रीज्ड 4.56 हो गया, फिर बढ़ता घटता बढ़ता घटता तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट में आ जाते हैं 2014। जो फाइनल ड्राफ्ट है हमारे पास वो 2014 का है, जहाँ पे उनकी संख्या हो गई है 12%, जो कि पहले से ज़्यादा है। The role of judiciary, the last part of our chapter. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. While interpreting the provision of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the Constitution and also the intention of the Constitution makers. We will try to understand the contribution of judiciary in this regard with the help of following points. जुडिशरी का मेन मुद्दा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हमें लेके आना है, बट इसके ये चलते चलते इसके तहत हमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो बेसिक चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो चेंज ना हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है बाबा साहेब अम्बेडकर एंड जो पूरी टीम थी, उनका जो इंटेंशन था वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो कैसे वो बेसिक फ्रेमवर्क है जुडिशरी का कि वो कैसे काम करती है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर वो एक रिजिड होता, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा रिजिड होता है कि उसमें आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो लिविंग नहीं होता। बट क्योंकि हम लोग उसको फेरबदल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस एंड द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक दोज चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जा सकता है एंड वो चेंजेस लाने की पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, बट पार्लियामेंट अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, ये चीज़ देखने का काम जुडिशरी का है। द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर to make those changes in the constitution, but at the same time specified the limitations of this power. The judiciary has taken to stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. तो शर्त ये है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से फेरबदल कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क है, जो उसका मेन चीज़ें है, उसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। The basic structure of the constitution generally includes following provision. मेन चीज़ें क्या है, अभी जो बेसिक जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, वो ये है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो रूलर है या जो हेड है वो कोई भी रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, वो एक रिपब्लिक होता है। रॉयल फैमिली मतलब क्या, जैसे कि पुराने टाइम में होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, देन उसके बाद उसका वंश ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वो मोनार्की हो जाता है। उस टाइप का गवर्नमेंट जो है वो मोनार्की हो जाता है। रिपब्लिक में क्या होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो राजघराने का नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल इंसान रहेगा या इंडिया का सिटीजन रहेगा। और डेमोक्रेटिक तो हम लोग को पता ही है, डेमोक्रेटिक फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म, वो गवर्नमेंट जो जनता ने बनाई है, यानी पीपल के पास पूरा पावर है, वो फॉर्म की गवर्नमेंट। तो हमारा मेन प्रोविज़न ये है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो हमेशा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड प्रोविज़न क्या है, सेकेंड मेन चीज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशन जो है वो पूरा एकजुट है, ठीक है, उसकी यूनिटी पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, यानी धर्म या रिलीजन को लेके हम लोग कोई भी नए रूल्स बना नहीं सकते, पार्लियामेंट कोई भी नए रूल्स बना नहीं सकती है जिससे यूनिटी डिस्ट्रॉय हो। सोवर्जिनिटी ऑफ द नेशन, नेशन जो है इंडिया जो है वो हमेशा सोवर्जिन यानी आज़ाद होना चाहिए, किसी के गुलाम या किसी से डर के या किसी के अधीन रह के काम नहीं करना चाहिए, उसका सोवर्जिनिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। द लास्ट वन इज सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री होनी चाहिए हमेशा। सेक्युलर मतलब कोई भी धर्म या जाति या रिलीजन को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी, यानी हम लोग को ऐसा देखना है कि इंडिया में कोई भी रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं, सारे रिलीजन एक समान है। और सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमेशा सबसे हेड होना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, कोई भी नेता या कोई भी उसको ऑल्टर नहीं कर सकता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर कोई नहीं आता है। सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशरी ने अब तक कौन से ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिया है वो देखते हैं। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस बाय द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। Some of the important subjects on which the court has given judgments include rights of children, protection of human rights, protection of the honor and dignity of women, individual freedom, and tribal empowerment. These efforts have made the political process in India more mature. ये सारी बेसिक, ये सारे ऐसे टॉपिक, ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने सही डिसीजन देके लोगों को इंसाफ दिलाया है। तो ये In this chapter, we took a review of the Constitution and the working of government on the basis of the Constitution in the context of Indian democracy. There are many challenges before Indian democracy. Government's act and policies have not put an end to all the problems. There are several new problems confronting us. However, that what is important is that the people of India have developed a democratic mindset. In the next chapter, we will study about election process in India. Let us take a quick recap of this chapter. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स, लॉज, अमेंडमेंट सब कुछ लिखा हुआ है एक देश को चलाने के लिए, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन 3 चीज़ें जो हमें पढ़नी थी इस चैप्टर में वो था डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड द रोल ऑफ जुडिशरी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक ऐसे टाइप की गवर्नमेंट होती है जो लोग खुद बनाते हैं, अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। यानी यहाँ पे जो बेसिकली ये बताया गया है कि जो पावर है वो पब्लिक के पास है। डेमोक्रेसी में हमने सीखा पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बारे में कि कैसे वोटिंग की राइट्स जो थी, जो वोटिंग की पावर थी, वो एज 21 से घटा के 18 कर दिया गया और उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस अच्छे चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, यूथ लोगों ने बहुत आगे चल के बढ़ावा दिया वोटिंग को लेके, और इससे इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन भी बना, नॉट ओनली क्वान्टिटी वाइज बट ऑल्सो क्वालिटी वाइज ऑल्सो। देन वी स्टडीड अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डेमोक्रेसी में किस तरीके से पावर को बांटना इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, कैसे गवर्नमेंट हमसे कोई सीक्रेट नहीं रख सकती है, जिससे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डेमोक्रेसी में देखा। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल मतलब सोसाइटी। जब हमारे समाज में से हम सारे इनजस्टिस या सारे अन्याय निकाल के फेंक देते हैं तो जो बचता है वो होता है जस्टिस। एंड इक्वालिटी मतलब सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, सबको बराबरी के नज़र से देखना है। तो सोशल जस्टिस लेके आने के लिए और इक्वालिटी लेके आने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर सोशल कास्ट एंड सोशल ट्राइब्स, प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़, लॉस फॉर वुमेन। ठीक है, ये सारे अलग अलग एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए थे इन सारे लोगों के बचाव के लिए या उनको पुश करने के लिए, उनको सोसाइटी में आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके हेल्प से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द जुडिशरी। जुडिशरी मतलब लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम है कि इंडिया के हर एक सिटीजन को इंसाफ दिलाना। जुडिशरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर सही फैसले देके इंडिया को एक अच्छा डेमोक्रेटिक नेशन बनाए रखा। If you have any doubts or queries regarding this lecture, please contact us on 9619768527. Your doubts will be cleared individually by our online system. Thank you for watching this video. Do not forget to like this video. Stay home, stay safe.